पेरेंट्स से बात करती हूँ, उसको एक्नॉलेज करा देती हूँ, उसको एक्सेप्ट करा देती हूँ वेयर दे वर रॉन्ग, नॉट विद द इंटेंशन बट देयर एक्शंस वर रॉन्ग। एंड हम बहुत क्लोज आ जाते हैं, उनको वो दिख जाता है कि कहाँ गलती हुई थी, एंड वहां वो ये कहते हैं कि प्लीज नॉट टॉक टू माई चाइल्ड। सेपरेट हो रहे हैं या वो डाइवोर्स ले रहे हैं, वी आर इन फैमिली, तो क्या हम अपने बच्चे से अपने इश्यूज बात करते हैं? बच्चे की इश्यूज है, यहाँ मैं एक बहुत बड़ी बात करूंगी, क्या हम बच्चे का दिन जानना चाहते हैं, शेयर वर्ल्ड जानना, कि कभी हम अपने बच्चे को अपने वर्ल्ड के बारे में बताते हैं? तो जब हम ही नहीं कर रहे तो वो कहाँ से करें? तो दे सबसे बड़ी मिस्टेक एक ये भी करते हैं, दे आर नॉट गुड एग्जाम्पल फॉर देयर चिल्ड्रन। जिनकी वो किस प्रेशर से, किस थॉट से आ रहा है, कल उसका खुद का कोई रिलेशनशिप अच्छा होगा कि नहीं होगा। ब्रोकन रिलेशनशिप जिस घर में होते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो उन बच्चों के क्या माइंडसेट होते होंगे, क्या ट्रस्टिंग उनके अंदर फैक्टर्स आते होंगे। तो कैन यू थिंक, तो एटलीस्ट आप अगर अपना डिसीजन, इतना पावरफुल डिसीजन ले रहे हो, और फैमिली इज पेरेंट एंड चिल्ड्रन, बात तो कर लो। अच्छा उनसे पूछ तो लो, वो जो रूल्स बना रहे हो उनको को क्रिएट कर लो ना, और फिर हर टाइम पीरियड के बाद अगेन बात करो, अगेन को क्रिएट करो। एंड मुझे लगता है कि दोनों पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बिकॉज बच्चे दोनों ने अपनी कंसेंट से पैदा करे, बच्चे नहीं आए थे अपने आप, आपने पैदा करे थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर। डेफिनेटली नहीं कर सकते आप नहीं समझ पा रहे कि बच्चे के वर्ल्ड में क्या हो गया, और वो डिस्टर्ब बच्चा कहाँ डिस्टर्बेंस देगा, कांट अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस थिंग। Hello everyone, welcome back to the show. Parenting is perhaps the most beautiful and the challenging journey that any human being can ever undertake. Along this journey, many parents most often find them standing at the crossroads. The moments of confusion, self-doubt, emotional healing and a lot more. And obviously the deep desire to do better for their children. There comes in the two powerful profession. First, a parent-child counseling. They are people who create safe, non-judgmental space for both parents and children to understand each other better. They help in healing the wounds, making the bond stronger, which lies in the heart of every family. They help with interaction, understanding, and a lot more things. Now comes the second profession, which is a parent coach. A parent coach is someone who helps you to heal, obviously, but not only heal, but helps you to grow. They give you practical tools, strategies, and a clear vision of what a kind of parent you truly want to be. Coaching builds, counseling heals, and when these two comes in together, magic happens. In today's episode, we sit down with Mrs. Rakhi, who is both a parent-child counselor and a parent coach, who's wearing two powerful hats and will help us navigate through the journey of parent and children. So, welcome to the show, Mrs. Rakhi. Yeah. Hi, I'm Rakhi Khanduja, a parent coach and a parent-child counselor. I am dedicated to helping families in bringing their relationship in a healthier, happier form. And over the years, I have worked with parents, children and adolescents and guiding them through parenting, communication challenges and with emotional well-being, and really living a good, happy, healthy life. That is my purpose. Second thing, parents should enjoy their parenting, day-to-day parenting, which is very, very important, which I believe every child and every parent has unique relationship, and they are self-sufficient in understanding each other. Academically, I am MBA in finance. I have done B.Ed also. Somehow connecting with children, it was into my blood, passion. Somehow it was there. And achievements, if I say, I did marathons, half marathons, 21 kilometers
4 times. I love to do dance, I love to do paint, and I do writing also, where जो writing मैं बचपन से करती आ रही थी, मुझे नहीं पता था एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, that is परवरिश केयर फाउंडेशन, उसका मैंने बुक लिखा था क्लास 6 करिकुलम हिंदी। तो आई रोट डाउन एंड मुझे लगा कि वो जो बचपन का एक पैशन था वो आ गया। बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट्स में आई हैं एंड आई वॉज वर्किंग एज पेरेंट रिलेशनशिप मैनेजर इन परवरिश ऑल्सो। एंड स्कूल में मेरी बेटी के थ्रू आई वॉज PTA मेंबर इन बिरला विद्या निकेतन। तो वर्किंग विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स बहुत लॉन्ग जर्नी रही है। तो नाउ इट्स माय प्रोफेशन एज ए पेरेंट कोच एंड ए पेरेंट चाइल्ड काउंसलर। एंड आज जो हम बात करेंगे एंड डेफिनेटली वो एवरी फैमिली में कहीं ना कहीं इन सम वे वो उसको हेल्प करेगी। एंड आई ट्रूली थैंकफुल टू यू यू हैव इनवाइटेड मी। थैंक यू सो मच। Our pleasure, ma'am. Completely our pleasure. Okay, so can you tell us about your journey into parent coaching and counseling, and what actually drew you to this work? या बहुत एक्चुअली ये तो मेमोरीज में जाने वाली बात है एंड यस एंड इट इज़ वेरी पावरफुल ऑल्सो बिकॉज पेरेंट कोच करके मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी पेरेंट्स को बताने वाली हूँ, तो बहुत बड़ी एक चेयर है मेरे पास, बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी कि पौधा है। तो आई स्टार्ट कि ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी एज ए पेरेंट, स्ट्रगलिंग पेरेंट। तो बच्चों के बहुत अर्ली एज में 22 इयर्स में मेरी मैरिज हो गई एंड 23 में मेरा बेटा मेरे पास आ गया, 28 में डॉटर भी आ गई एज में। एंड विद स्कूलिंग, उसके स्कूलिंग में मेरे साथ बहुत सारे स्ट्रगल्स आए कि वी यूज्ड टू बी ए सेलिब्रिटी पेरेंट्स फॉर कंप्लेंट्स इन द स्कूल एंड वहाँ पे बुलाया जाता था, कंप्लेंट्स दी जाती थी और डे बाय डे हम लोग बच्चे के ऊपर उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे काम करा रहे हैं। वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता था बट वो स्पोर्ट्स कभी ये खेल रहा है, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता था तो ऑल ऑफ ए सडन फुटबॉल खेलने चला। सो मैनी स्ट्रगल्स सुनने के लिए मैं बुक्स पढ़ती थी। अपने पेरेंट्स से कभी बात करी तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि राखी, आप लोगों को हम लोगों ने कैसे ट्रेन किया, डिसिप्लिन बनाओ अपने घर में, यू डोंट हैव एनी डिसिप्लिन। हाँ, हम लोग 5 बजे उठते थे तो अपने बच्चों को तुम प्रिपेयर करो, व्हाई आर यू नॉट डूइंग। तो लिसनिंग टू देम, किसी बड़े से बात करी, बुक्स पढ़े, गूगल पढ़ा, यूट्यूब देखे, तो बहुत सारी चीजें आई और मैंने अप्लाई करी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये बोलूंगी कि मेरा और मेरे बेटे का रिलेशनशिप बैड, वर्स्ट होता चला गया, बहुत वर्स्ट हो गया। मैं अगर शेयर करूं तो मुझे वो बालकनी में बंद कर देता था, जो अभी हंसी आएगी बट रियली में उस कंडीशन से हम यहाँ तक आए क्योंकि उसके अंदर गुस्सा था कि वाई कांट माई मदर अंडरस्टैंड मी, सिंपल बात। देन आई ज्वाइन वन पेरेंटिंग कोर्स वेयर सबसे बड़ी मेरे लिए आई ओपनिंग थी, आई वॉज रॉन्ग एज ए पेरेंट। एंड वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एज ए आई वॉज रॉन्ग, my actions were wrong. I can't think bad for my child, but my actions were wrong. And that one more myth, I don't know my child. कोई बात करता था, मैं अपने बच्चे के बारे में बोल रही होती थी, बट मैंने अपने बच्चे से कभी बात नहीं करी। मैंने गूगल पढ़ा, मैंने बुक्स पढ़ी, पेरेंट्स की सुनी, बड़ों की सुनी, इन-लॉज की सुनी, आपस में डिस्कशन करी, बट हैड आई टॉक टू माई चाइल्ड? नेवर। और मैं बोलूंगी मेरा बच्चा मेरे से शेयर कर लेगा? इज इट पॉसिबल कि बैकग्राउंड इतना गंदा है, इतना गंदा रिलेशनशिप है, हाउ कैन माई चाइल्ड टॉक टू मी? तो प्री वर्क किया एंड वन नाइट स्टोरी नहीं है, ये डिकेड्स की स्टोरी है कि आज मेरे बेटा अब्रॉड में है और हम डेली बात करते हैं। मेरी बिटिया मेडिकल कर रही है एंड हम डेली बात करते हैं। एंड आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि जब बच्चे खुद ये बात कहते हैं कि वी वॉन्ट टू टॉक टू यू, वी वॉन्ट टू टेल यू अबाउट आवर वर्ल्ड। एंड एज ए पेरेंट दिस इज माई अचीवमेंट। जब ये धीरे धीरे मेरी अचीवमेंट्स आने लगी एंड जब पेरेंट्स बात करते थे तो मुझे यही चीज उनकी ना प्रॉब्लम आती थी कि मुझे उनको बताना था कि कहीं आप गलत हो, लिसन, बट वो स्किल नहीं थी मेरे पास। एंड आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आपके पास स्किल नहीं है। तो मैंने पेरेंट कोच का कोर्स किया
एंड विद पेरेंट कोच कोर्स तब मैंने पेरेंट से काफी काम करके बात करने लगी। तब मुझे एक और नई चीज मेरी ओपनिंग हुई कि पेरेंट्स जनरली बोल देते हैं कि प्लीज मेरे बच्चों से बात करो जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो। एंड दे डो, अब मैं तो नहीं इम्प्रूव कर सकता, मेरी एज नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, आप मुझसे जो काम करने के लिए, जैसे इतना बड़ा मिथ मैंने तोड़ा कि आई वॉज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। नो, आई वॉज नॉट, आई वॉज रॉन्ग। वो रॉन्ग वाली बात आ ही नहीं रही थी, वो काम नहीं करना था उनको। तो वो कहते थे मेरे बच्चे से बात कर लो, एंड जब वो बोलते थे कि मेरे बच्चों से बात कर लो तो मुझे फिर बच्चों से ही बात करनी है, बिकॉज मैंने बोला ना कि मेरा कनेक्शन है बच्चों से। और मैंने फेस किया कि कैसे एक बच्चा इम्पैक्ट होता है इमोशनली, मेंटली, बहुत इम्पैक्ट होता है। तो फ्रॉम सेविंग दैट डैमेज मुझे वहां आना ही था। देन आई डिड वन मोर कोर्स, स्कूल पेरेंट चाइल्ड काउंसलिंग का। ओके। एंड देन जब मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ा तो कहीं ना कहीं मेरे पास एडोलेसेंट आने लगे, एंड दे डोंट वांट टू शेयर इट विद देयर पेरेंट्स, दे डोंट वांट टू, उनके लिए आना ही बहुत बड़ी बात थी। अब इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हो और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, then I have to learn one thing more. Then I learn adulting plus plus where I talk to them. एंड देन बात करते करते एक और नई चीज मुझे खुली कि बहुत सारे बातों की जो कॉजेज हैं वो कहीं ना कहीं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से आ रहे थे। एंड रिसेंटली जस्ट यस्टरडे आई हैव कंप्लीटेड वन मोर कोर्स विद परवरिश केयर फाउंडेशन। आई डिड उनका एक मुहिम है एबी के आओ बात करें, वेयर दे टॉक टू द चिल्ड्रन, एंड वो इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे है, एंड मैंने वो भी किया। बिकॉज बात करना आसान है, बट किसी के जख्म को आप ओपन कर दो और फिर इसको हील नहीं करो तो वो मोर डैमेजिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग कि क्या वैल्यू है इस पोस्ट की, तो आई एम इन टू दिस जर्नी विथ सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड। तो आई डिड, एंड अपने पे काम करके, तो माई इज नो रूल्स नो थ्योरी, 100% एप्लीकेबल, and I work under the carpet। लोग पेरेंट्स और चिल्ड्रन और जिसको भी होता है उसको सिर्फ सिम्टम्स पता है, रियल कॉज नहीं पता। तो आई ट्राई टू ब्रिंग देम वेरी वेरी नियर टू द, बहुत कॉज पे आ जाए अच्छी बात है, बट वेरी क्लोज टू द कॉज, एंड देन हम उसको सॉल्व करते हैं। एंड एवरी स्टोरी इज यूनिक। मैंने जो मेरे बच्चे के साथ किया वो मेरा और मेरे बच्चे का रिलेशन है, वो भी बेटे के साथ है, बेटे के साथ डिफरेंट होगी। तो आई कांट ये नहीं कह सकती कि ये स्टेटमेंट है मैंने जैसे किया आप ऐसे कर लो, नो, ये तो मोर डैमेजिंग है। तो ठीक है, ये मेरी एज ए पेरेंट कोच, पेरेंट चाइल्ड काउंसलर, adulting plus plus, now I'm a ABK warrior also। Very inspiring, ma'am, the way you are learning and you're improving your own self before putting out to people. This is really inspiring. Hats off, ma'am, for the kind of continuous learning you're going through. You're still gaining those certificates, not like I have learned, now I am there to serve you, and you're just sitting, you're still working on your skills. This is very inspiring. Thank you। Coming to the next question, ma'am, you wear two powerful hats of being a parent coach and a parent child counselor. How do you actually differentiate between two, and how do you choose what a specific family needs? A parent coach talking to parents, parent child counselor talking to child also। Yeah. अभी मैंने बताया ना कि जहाँ पेरेंट्स नहीं करना चाहते काम तो वहां बच्चे से बात करनी पड़ेगी। और आजकल यही आता है कि पेरेंट्स कहते हैं जो मुझे समझाया ना बस ऐसे ही आप आके समझा दो मेरे बच्चे को। तो अगर बच्चे को, क्योंकि एक बच्चा जो है ना, एक डिस्टर्ब चाइल्डहुड ना एक डिस्टर्ब एडल्टहुड बनता है। तो आज अगर उस बच्चे को हमने वहीं पे उसको नहीं सुनाना तो कल हम एक जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम इस पॉइंट का रियली में मीनिंग समझे ना, तो मुझे लगा कि अब ठीक है, मैं वहां पे नहीं कर पा रही काम, तो काम दूसरे तरीके से पकड़ लो, एंड वो किया मैंने। तो वही हो रहा है। ओके। बस सेविंग बच्चों पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर लिमिटलेस। मतलब मैं कहूँगी हर एक इंसान ना नो लिमिट है। आप सुनो तो से हम बोल देते तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं, हर बच्चा हर कर सकता है।
दे हैव दैट एनर्जी, दे हैव दैट पावर. बस एक गाइडेंस की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है उनको. दैट दे नीड. एक लिसनर की जरूरत है. बस that's it. The way we saw in Tare Zameen Par, that movie, every child is a unique star. Cry, क्योंकि मुझे Yeah. मेरी जर्नी याद दिलाता है. मैं वो मूवी बिना रोए नहीं देख सकती. एंड मैं देखती हूँ, मैं बार बार देखती हूँ. तो मेक मी रियलाइज कि यस करना है. Need to work on parents as well. Yes. Yeah. Okay. How does a typical day in your practice looks like? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी. एंड ये मेरी वो बात है जो मैं किसी के साथ कभी मैंने शायद शेयर नहीं करी थी, बिकॉज मैं काम कर रही हूँ. बट मेरी फीलिंग्स क्या आ रही है ना, मैंने आज आपको मैं बता रही हूँ कि आप पूछ रहे हो. यस, डिफिकल्ट डे वो होता है कि मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, उसको एक्नॉलेज करा देती हूँ, उसको एक्सेप्ट करा देती हूँ वेयर दे वर रॉन्ग, नॉट विद द इंटेंशन बट देयर एक्शंस वर रॉन्ग. एंड हम बहुत क्लोज आ जाते हैं, उनको वो दिख जाता है कि कहाँ गलती हुई थी. एंड वहां वो ये कहते हैं कि प्लीज नॉट टॉक टू माई चाइल्ड. अब Just the moment before accepting it, नहीं, they realize it. काम एक्सेप्ट कर लिया, Okay. फाइन, मैं मेरे से हो गई गलती, बट काम नहीं करना मुझे. Okay. मुझे एफर्ट नहीं करना. Okay. तो वहां वो ये कहते हैं कि अच्छा तुम समझा सकते हो तो तुम समझा लो. बहुत अच्छे से मुझे समझा लिया, नाउ यू मेरे बच्चे को समझा दो. और कमिंग बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड इज रियली हर्टफुल मोमेंट फॉर मी. Okay. I don't want to. क्योंकि what I believe every parent and child are capable in themselves to understand each other. बस उनके बीच का गैप खत्म करना है, जिसका जो मेरा काम है. मेरा काम बीच में आना नहीं है, और मुझे बीच में आना पड़ जाता है ना, वो मेरे लिए बहुत हर्टफुल मोमेंट होता है. एंड मुझे ये पता है कि कोई भी बच्चा ना अपने पेरेंट्स की जगह किसी को नहीं देख सकता. तो आई एम पेरेंट ऑफ माई चिल्ड्रन एंड आई एम नॉट पेरेंट ऑफ दोज चिल्ड्रन. yeah. मुझे नहीं आना, बट फिर वही वाली बात है कि एडल्टहुड अच्छा होना चाहिए, मुझे सोशली वर्क करना है, तो फिर और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास. तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट विद दैट इंटेंशन. Okay. और मैं घर आके अपने आप को हील करती हूँ. आई टॉक टू माई चिल्ड्रन कि आज ये हुआ, कि यस आई एम पेरेंट फॉर यू, और मुझे करना. आई एम को पेरेंट को दो कह दो, या गार्डियन कह दो, या केयर टेकर कह दो, वट एवर इट मे बी, गाइड कह दो, बट मुझे बनना पड़ रहा है. बट आई विश कि पेरेंट्स शुड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से ही बात करना चाहते हैं. With such a strong term, yes, you are co-parenting them. Actually, you are co-parenting a child as well as the parent, in a way. एक्चुअली मैं पहले एम्पावर्ड पेरेंट्स को ही करना चाहती हूँ. और मैं चाहती हूँ जब वो पावरफुल हो जाएंगे ना, वही पावर हमें बच्चों में जाना चाहिए. it will pass And in वो बहुत generations. प्यारा तरीका है, ठीक है. अब वो नहीं करना होना चाहते, या वो करना नहीं चाहते, तो फिर एंड आई एम्पावर द चाइल्ड, बिकॉज उनको दिखाते कि ये तुम्हारी लाइफ डैमेज हो रही है. आर यू गेटिंग इट? कम आउट, चल काम करते हैं. चल तेरी सेल्फ बिलीफ पे ही काम करना है ना, तेरी सेल्फ एस्टीम पे काम करना है ना, आज अब मैं करती हूँ. तो फिर मुझे करना पड़ता है. What do you think is the reason of that friction of parents that they don't want to work? Maybe because they have been, built up with that mindset that you are a parent, so you are always right, and you are the one who will guide the child. Maybe. बहुत सिंपल सी चीज मैंने सीखी थी ना, कि मैंने कभी बच्चे से बात नहीं करी थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है. आई डोंट नो. और वो कौन बताएगा? बच्चा ही बच्चा. बताएगा ना. तो ऐसे पेरेंट्स के अंदर क्या चल रहा है वो कौन बताएंगे? Parents themselves. एवरी पेरेंट्स हैज देयर ओन स्टोरी. आई कांट जज देम, आई कांट से कि दीज आर द कॉजेस. वो पेरेंट्स ही बताएंगे. हर किसी पेरेंट की अपनी एक स्टोरी है, हर किसी पेरेंट्स का अपना एक तरीका है. तो आई कांट. I'm okay, fine, not a problem. But my request is this: कि you should understand your responsibility. Okay. What are the most common issues that parents come to you today as compared to 5 or 10 years ago? 5 or 10 years ago, generally parents के पास 3-4 चीजें होती थी: sibling rivalry, developmental issues, study work, schedule and discipline. All of them. career क्या होगा, वो हमारी 4-5 चीजें होती थी. But after COVID,
लिस्ट ये होगी एंडलेस. Excessive screen time, Yes. their anxiety, their social dilemma, their difference between real versus real, emotional well-being, उनके लिए फैमिली कनेक्शन सबसे बड़ा टॉपिक हो चुका है आज की डेट में. फिर उसके बाद बच्चे ऐड ऑन कर रहे हैं कंपैरिजन, पीयर प्रेशर, दे आर अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर. वो जो ट्रस्ट नहीं है, फ्रेंडशिप का मीनिंग चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, एंडलेस हो गई अब ये. तो और उनका बॉडी इमेज बहुत इश्यूज है, अनलिमिटेड. हर बारी मुझे नए इश्यूज ही मिलते हैं, डिफरेंट. Okay. And how has screen time contributed to these list of issues? स्क्रीन टाइम आप बताओ. हमने स्क्रीन टाइम का प्लस पॉइंट भी हुआ है कोविड में. हमने देखा स्कूल चल रहे हैं, ऐसा नहीं. और एक छोटे छोटे से बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे को स्कैन करना आ गया, उसको पोस्ट करना आ गया, उसको टाइप करना आ गया. वो जो टेक्नोलॉजी के लिए हम उनको इंस्टीट्यूट भेजते थे, आज वो टेक्नोलॉजी उन्होंने सीख लिया. दे आर वेल नोन. आज सब लोगों के पास अपना अपना फोन आ गया. अब उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी आ गया. क्या आ गया कि पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में ये फोन आ गया, स्क्रीन आ गया. अब ये दोनों तरफ से है. पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है और बच्चों के पास भी टाइम नहीं है. वो जो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन थी, वो जो आपस में आउटडोर गेम्स थे, वो जो डिस्कशन ऑफ स्टोरीज थी, वो खत्म हो गया. सब कुछ फोन पे चला गया, गूगल्स पे चला गया, GPT पे चला गया, और वो फैमिली कनेक्शन नहीं रहा. उसके बाद वो जो उस पे देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा. वो जो रील एक देख रहे हैं, उस रील के पीछे कितने शॉर्ट्स आ रहे हैं या कितनी मेहनत है, वहां नहीं जा रहे. और बहुत शॉर्टकट्स पता चल गया. आज मैंने रील बनाई, उस पे 100 लाइक्स आ गए, दे आर हैप्पी. और कल मैंने रील बनाई, बाय चांस उस पे 10 लाइक्स आए, तो उन्होंने अपना सेल्फ एस्टीम इसी से जोड़ दिया. They are not working on their efforts. उनकी क्या ग्रोथ हुई, उनकी क्या लर्निंग हुई, वहां तो कोई बात ही नहीं करता. मेरे कितने लाइक्स आए, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, तेरा फ्रेंड कौन है, अरे तूने कहाँ पार्टी करी. मतलब आर यू गेटिंग कि वो कहाँ पे उनका इमोशनल वेलबींग जा रहा है. हमने तो टेक्नोलॉजी यूज करनी थी ना, टेक्नोलॉजी इज यूजिंग दैम. So they are not actually paying attention to their actions, they are only paying attention to the reaction from the people, the outside world, the likes, reach, views. 100%. बट इसके पीछे बहुत सारे कॉजेस और जुड़े हैं. ऐसा क्यों हो रहा है, आप अगर कभी ये सेशन लोगे, देन यू विल सरप्राइज कि हमने इस बारे में कभी बात नहीं करी. एंड अगर आप ये कह दो कि क्या मैं अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करा सकता हूँ, 100% आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजी. कहाँ मिस हो रहा है मैं बताऊँ. Okay. I can help you. Okay. And how do you make parents realize their shortcomings? I'm sure that's going to be a very difficult, that must have been a very difficult point to make them realize. Mistakes? Yeah, their mistakes. They are doing. मैंने बोला कि इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. उससे बेस्ट इंटेंशन एक चाइल्ड के लिए हो ही नहीं सकता. पहली मिस्टेक वो करते हैं, स्टार्ट करेक्टिंग द चाइल्ड विदाउट कनेक्टिंग देम. मतलब जो मैं कर रही थी, मैं काम कर रही थी, मेरा कनेक्शन मेरे बच्चे के साथ क्या है मुझे पता ही नहीं था. मैं जजमेंट करती थी. हम, आपने सुना होगा ना, पेरेंट जनरल बोलते हैं हम सुनते तो हैं अपने बच्चे. आप मुझे ये बताओ वो सुनना क्या सुनना होता है. आप मेरे से बोले, स्टार्ट करा एक टॉपिक पे, और आई एम वेटिंग कि आप बंद करो और मैं बोलना शुरू करूं. आई विल गिव यू द आंसर. मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत कर रहे हो या तुम वो कर रहे हो. वो सुनना होता है, समझने के लिए नहीं सुन रहे. सुनना नहीं है एक्चुअली में, वो सुनना नहीं है. हम नहीं सुन रहे. हम उनकी फीलिंग्स को प्रेफरेंस ही नहीं देते. बच्चा है ना, इसकी क्या क्यों नहीं होगा बच्चे की फीलिंग्स, वी डोंट वांट टू. हम उनसे ना क्रिटिसाइज बहुत करते हैं. बात करने से पहले ही ना तेरे फ्रेंड्स, फैमिली में, इनमें बात करते हैं. हम अचीवमेंट्स पे बात करते हैं, हम एफर्ट्स पे बात नहीं करते. उस बच्चे ने एफर्ट भी तो लगाए. कैन यू से कि हम बोलते हैं आई एम प्राउड टिल 98 मार्क्स आए. क्या ये बोल सकते बेटा तूने कितना, किसी बच्चे को 40 आए और उसने 50 ले लिए, क्या बोला कि बेटा तूने कितना एफर्ट लगा. आई लव तेरे एफर्ट्स आए. बोल सकते हो कि यार तेरे एफर्ट्स 98 तक के लिए आ गए, फ्रूटफुल हो गए, बट तुमने एफर्ट किए, चलो कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं कहाँ कर सकते हैं.
Imagine Yeah. कितनी How much that would make a difference. एक्चुअली में Definitely. हाँ, तो ये और कॉन्फ्लिक्ट्स, मम्मी पापा लड़ते Hmm. बहुत सारी। Yeah, I have a question ahead regarding this also. How divorces, affect the mental health of a child and the parent and child relation. Yes, आप मुझे बताओ कि जो डाइवोर्स होते हैं वो कौन लेते हैं? parents, बच्चे पे इसका इम्पैक्ट होता है? definitely. किस एज में? Could be any age, any age. मैं मैरिड हूँ टू Even, yeah, अगर आज मेरे पेरेंट्स बोलेंगे क्या मैं डिस्टर्ब होंगी? definitely. तो ऐसा नहीं है, किसी भी एज में बच्चे के लिए ये सबसे बड़ी हार्टफुल लिसनिंग होती है कि मेरे पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं या वो डाइवोर्स ले रहे हैं, वी आर इन फैमिली। तो क्या हम अपने बच्चे से अपने इश्यूज बात करते हैं? बच्चे की इश्यूज है, यहाँ मैं एक बहुत बड़ी बात करूंगी, क्या हम बच्चे का दिन जानना चाहते हैं, शेयर वर्ल्ड जानना, कि कभी हम अपने बच्चे को अपने वर्ल्ड के बारे में बताते हैं? तो जब हम ही नहीं कर रहे तो वो कहाँ से करेंगे? कहाँ से? तो दे सबसे बड़ी मिस्टेक एक ये भी करते हैं, दे आर नॉट गुड एग्जाम्पल फॉर देयर चिल्ड्रन। तो वहाँ हमने बात नहीं करी कभी बच्चे से, ऑल ऑफ ए सडन हमने उनको डिसीजन बता दिया, और आपको लगता है कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट उन पे नहीं आता होगा? Definitely, definitely. क्योंकि एक पेरेंट दूसरे पेरेंट का क्रिटिसाइज करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज नॉट गुड फॉर देम। वो अपने पेरेंट्स को गॉड मानते हैं, गॉड फिगर है। सेकंड थिंग, रिस्ट्रिक्शंस दे देते हैं हम, बिना सोचे समझे कि उनपे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनकी आइडेंटिटी एक मिनट में चेंज कर देते हैं, और हम कहते हैं कि उनपे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और हम पूछने की भी जरूरत नहीं समझते। हम सोचते भी नहीं कि अगर मेरा बच्चा बहुत सारी चीजों से, आई डोंट वांट, अभी मैं वो कह रही हूँ कि सब्सटेंस अब्यूज में जा रहा है या मेरा एकेडमिकली वो नहीं कर रहा, हम उसको कह रहे हैं कि तू एकेडमिकली, कैन यू इमेजिन कि वो किस प्रेशर से, किस थॉट से आ रहा है? कल उसका खुद का कोई रिलेशनशिप अच्छा होगा कि नहीं होगा? ब्रोकन रिलेशनशिप जिस घर में होते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो उन बच्चों के क्या माइंडसेट होते होंगे, क्या ट्रस्टिंग उनके अंदर फैक्टर्स आते होंगे। तो कैन यू थिंक? तो एटलीस्ट आप अगर अपना डिसीजन, इतना पावरफुल डिसीजन ले रहे हो, और फैमिली इज पेरेंट एंड चिल्ड्रन, बात तो कर लो। अच्छा, उनसे पूछ तो लो, वो जो रूल्स बना रहे हो उनको को क्रिएट कर लो ना, और फिर हर टाइम पीरियड के बाद अगेन बात करो, अगेन को क्रिएट करो। एंड मुझे लगता है कि दोनों पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बिकॉज बच्चे दोनों ने अपनी कंसेंट से पैदा करे, बच्चे नहीं आए थे अपने आप, आपने पैदा करे थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर। डेफिनेटली नहीं कर सकते आप नहीं समझ पा रहे कि बच्चे के वर्ल्ड में क्या हो गया, और वो डिस्टर्ब बच्चा कहाँ डिस्टर्बेंस देगा, कांट अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस थिंग। Okay, how do you make parents understand the difference between a child acting out and child being, genuinely emotionally drained out? ऐसा क्यों लगता है कि बच्चा एक्टिंग कर रहा है? A major misconception. That is why. How do you make parents understand this difference? मैं एक्टिंग कर रही होंगी तो मैं थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ, मैं क्यों एक्टिंग करूंगी, और क्यों करना है मुझे एक्टिंग? और अगर आपको लगता है कि एक्टिंग का मतलब बच्चा झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है वो आपसे? Because of maybe the fear of your own reaction. आंसर आ रहा है, बहुत सारे आंसर है उसके पीछे। अगर आप ये बोल रहे हो कि एक्टिंग करे, वो एक्टिंग क्यों कर रहा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क द चाइल्ड। मेरे को क्लियर पूछ लो, मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मुझे कहीं फील हो रहा है कि आप एक्टिंग कर लो, अगर मैं आपसे स्ट्रेट अवे प्यार से पूछ लूँ कि आप महक आप एक्टिंग तो नहीं कर रही, तो आपको क्या लगेगा? आपको एक बार के लिए फर्क लगेगा, बट धीरे धीरे अगर यही प्लेटफॉर्म हमारा सेट होगा और हमें पता होगा कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, हम इल्यूजन्स पे बात नहीं करते हैं, तो आप मुझे बहुत इजीली बता दो नहीं यार मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं डिस्टर्ब, I was really disturbed with this thing, and maybe रीजन भी हम बता पाएंगे जब वो सेफ प्लेटफॉर्म होगा। और आप ये देखो एक्टिंग पेरेंट्स भी करते हैं, हम डिस्टर्ब कहीं और से आते हैं, अपने बचपन का कभी हमने इस चीज को रियलाइज किया कि वो डिस्टर्बेंस बच्चे की एक्टिविटी से नहीं आती, वो डिस्टर्बेंस कहीं और से आते। तो आई थिंक मैं जरूर कहूंगी फर्स्ट अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करो कि आप क्या सोच रहे हो, एंड देन डेफिनेटली अपने बच्चों से ही पूछो। और ये तो डेली एक एक्टिविटी अपने घर में करना शुरू कर दो,
कि एक्नॉलेज योर फीलिंग्स, एक्नॉलेज योर थॉट्स, कहाँ से आ रहा है ये, बस। And similarly acknowledge each other's feelings and तो है, thoughts. वो तो आपने क्रिएट करोगे, करोगे। और करते करते ये हमारे घर में है। ये अगर मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता होगा क्या मेरे बच्चों से, या मेरे बच्चे कुछ भी शाउट नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं होता, बट हम एक्नॉलेज कर लेते हैं कि वाकई ये आपसे ही आ रहा है कि कहीं और से आ रहा है। अगर कहीं और से आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम वहां है, यहाँ नहीं। और यहाँ से आ रहा है तो चला बैठ सॉल्व करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। Yeah. And how do you deal with children complaining about their parents? Because we've been so far talking about parents. Now coming to children, how do you deal with children when you counsel them? You get to know their side of the story, their issues. So how do you actually deal with them? आप बच्चे को ये तो नहीं बोलोगे ना कि तेरे पेरेंट्स गलत है, हाँ, that's what. नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। और ये तो मैं बोल भी नहीं सकती, हाँ। ये तो अगेंस्ट है और मैं कह भी नहीं सकती। तो सबसे पहले तो मैं बच्चे को एक बात ही समझाती हूँ कि बेटा देख, इंटेंशन किसी भी पेरेंट की गलत नहीं होती। सेकंड थिंग, पेरेंटिंग एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो मैं उसको अपनी स्टोरी समझाती हूँ, रियली में मेरी शेयरिंग होती है कि देख मुझे नहीं पता था, ऐसा नहीं है, कर रही थी, मैंने सीख लिया। बट बहुत सारे पेरेंट्स नहीं सीख पाते क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बट तुझे समझ में आ रहा है कि तेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या तुझे समझ में आ रहा है कि तेरे पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, तो चला उस पे काम करते हैं। अब काम करते करते उस हीलिंग प्रोसेस में ना उसको पेरेंट्स की इंटेंशन, उनके वर्ड, उसके पीछे की फीलिंग समझ आ जाती है। समहाउ मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, वो कनेक्टिविटी दिख जाती है मुझे, और फिर भी आता है कि वो नहीं समझ पा रहे, तो हाँ मैं उनको उस लेवल तक फिर समझाना शुरू करती हूँ बीइंग रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से, कि अगर वो आपका पार्टनर है, आपका फ्रेंड है जो नहीं समझ पा रहा, तो चलो हम उसको कैसे डील करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, फिर उन पे काम किया जाता है। समटाइम बच्चे भी तो अपनी बात नहीं बोलते, तो आई जस्ट से देम स्पीक अप। तुम बोलोगे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा। अगर उन्होंने नहीं बोला तो तुम बोल दो, बी देयर टीचर। क्या बुराई है, बच्चों से सीखना कोई बुराई नहीं, एटलीस्ट तुम उनका ओपन कर दो माइंडसेट, दिस विल रियली मी हील देम आल्सो। तो But do parents actually take it? देखो ये A child, teaching them, I will not say every day, but ओपनली occasionally they won't. नहीं, ओपनली तो पेरेंट्स कहें या नहीं कहें, पर हाँ अगर हमें कुछ दिख रहा होता है ना, हमारे दिमाग में तो जाता है। Okay. जाता है। अब मूवी चल रही है, वो हमें कुछ सिखाने नहीं आई है, बट मूवी से देख के कुछ तो सीख ही रहे होते हैं ना, Yes. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ रहा होता है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है किसी को ज्यादा किसी को कम, क्या इंटेंसिटी है वो ज्यादा कम हो सकती है, पर हाँ वो सीड डल जाता है, बन जाता है। जब बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं और वो अपनी बात शेयर करने लग जाते हैं और ओपन कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, तो आ जाता है। और अगर वो एक बार ये बोल देंगे मम्मा आप भी तो ओपनली बोल दो ना, बहुत प्यार से, वो सीट चला गया कि व्हाई डिड आई फिल्टर्ड एज ए मदर, अरे ये तो बहुत सिंपल था, तो आ जाता है। बच्चे करते हैं पेरेंट्स के साथ ही। So do you think the tone of a child actually affects a lot for a parent to accept this? टोन होती क्या है और आती कहाँ से है, इंटेंशन क्या है, क्या कहना चाहता है, बहुत सारी स्टोरीज है उसके पीछे, बहुत सारा काम करना है। टोन देख ली, सिम्टम देख ली, पर उसके पीछे की कहानी क्या है, आज द चाइल्ड, The root cause. सिंपल। Okay. क्या चाहता है बच्चा, वो पाव भाजी जाता है, छोले भटूरे खिला रहे हो तो चिल्लाएगा ही को, Yeah. वो Yeah. ऐसे ही तो कहेगा, और किससे कहेगा। That's it. Okay. बहुत सिंपल है, आज द चाइल्ड। As a child. How should parents handle a teenager who's pulling away or becoming a secretive? या टीनेजर्स तो ना पहले खुद आते नहीं है, उनको ना लाया जाता है स्कूल, पेरेंट्स और अथॉरिटीज के थ्रू कि ये इसमें प्रॉब्लम है। आप इमेजिन कर सकते हो
पहले तो टीनेज वो एज होती है जहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन Yes. दिमाग में चल रहे हैं, दे वांट आंसर्स ऑफ दैट, वो पहले ही कंफ्यूज होते हैं, उसके ऊपर उनको लेबल दे दिया जाता है। तो कैन यू इमेजिन, तो वो प्रॉब्लम आती है, वो कभी भी शेयर करेंगे ही नहीं। जहाँ लेबलिंग आ रही है, जहाँ जजमेंट आ रही है, वो क्यों शेयर करेंगे? आप उनका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो, आप उनको लेक्चर दे रहे हो। वो टॉडलर नहीं है, वो किड नहीं है, वो एडल्ट्स भी नहीं है, वो अपनी आइडेंटिटी तो खुद ही ढूंढ रहे हैं ना। Yeah. आप कहाँ से आ रहे हैं? आप इमेजिन करो कितना सेंसिटिव पार्ट है ये। वो उनको एक तो वक्त किया जाता है छोटे हो, एक वक्त क्या तुम तो बड़े हो गए, और उनको एक्सपोजर भी नहीं देने देते। आप डरते हैं पेरेंट्स। आप बात समझ सकते हो कि क्या हो रहा है टीनेजर की लाइफ में। उनसे बात करना ना बहुत सेंसिटिव पार्ट है, उनको सुनना है, उनकी फीलिंग्स वैलिडेट करनी है, उनको लेक्चर नहीं देना, उनके सामने एग्जाम्पल बनो, और उनके साथ जो टैबू टॉपिक्स है ना, आई मस्ट से स्टडीज और मार्क्स के बियॉन्ड बात करो, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो क्या क्या एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं, और हम एज ए पेरेंट बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? डू यू वांट कि आपका बच्चा बाहर से जंक लेके आए? आप उससे बात नहीं करोगे? कौन सी बेटर सिचुएशन? बात करो ना, सेक्स के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वीड, ड्रग्स, वेप, करो, रेप, बहुत सारी चीजें हैं। टॉक टू देम एंड देन सी वो बच्चे कैसे बात नहीं करते। Parents actually fail to understand this. They think if we'll not talk about such topics, the child would not actually inculcate them. But anyway, they're going out, they are into that exposure, they're learning such things from outside world and with misinformation, I believe. And that is 100%। उनको गानों में मिला 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। कैन यू इमेजिन? उनको समझ में क्या आ रहा है कि बिना वोडका पिए मैं पार्टी नहीं कर सकता, मेरा तो रोज का काम। अरे उसको समझाना है आपने कि पार्टी इज नॉट दिस, पार्टी इज enjoying इसके बगैर होती है। बी एन एग्जाम्पल फॉर दैट। and समझाने से पहले एटलीस्ट डिस्कस सच टॉपिक्स विद देम, इंट्रोड्यूस सच टॉपिक्स टू देम। डिस्कस नहीं करना, उनसे पूछना है पहले, टॉक टू देम व्हाट दे नो। आप बोलने जा रहे हो तो लेक्चर है, आस्क देम। यस आस्क देम, उनके व्यूज, उनके ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। Okay, so do it also, it is said that when a child is born, like let's say he or she is in 2 to 3 months, they actually start understanding their parents, all the home dynamics right from that age, and that is the seed which grows in later, right? प्रिपेयर और रिपेयर जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो यहीं से आती है। प्रिपेयर कर लो, या फिर बच्चे का डैमेज होने के बाद उसको रिपेयर कर लो। तो प्रिपेयर करना है तो आओ एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर इफ यू वांट, आपको लग रहा है कि कुछ हो गया गलत, देन ऑल्सो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। तूफान के आने से पहले और तूफान के जाने के बाद ही काम होता है। जब तूफान आ रहा था तो कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। तो अगर कुछ हो रहा है, वो टर्बुलेंस आ रही है लाइफ में, सिट डाउन एंड देन कम एंड टॉक कि अब क्या करें। पहले कर लो, बहुत अच्छी बात है। तो हम प्रिपेयर होते हैं, हम अपने बच्चे को प्रिपेयर करेंगे, डैमेज नहीं होगा। अदरवाइज रिपेयर वर्क शुरू कर लो, कोई बात नहीं। अब जो हो गया, काम तो करें, उसको बचाए तो सही डैमेज से, क्योंकि आज बचा लिया तो कल एडल्टहुड बचा लिया। Yes, like it's the foundation of growth. Yeah, okay. What role do grandparents and extended families play in building a emotional connection with the parents? Very nice question, and I am into joint family. We are 4 brothers living together, and this is very beautiful journey of ours. तो ग्रैंड पेरेंट्स और एक्सटेंडेड फैमिली एक्चुअली में क्या रोल प्ले करती है बच्चे की लाइफ में? बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले करती है। वो उसको एक हमारे पास सपोर्ट। आज मेरे बच्चे अभी तो बड़े हैं, बाहर गए, बट जब मैं कहीं जाती थी तो मेरी फैमिली ध्यान रख लेती थी ना, वो सपोर्ट स्ट्रक्चर है। वी आर देयर, आवर फैमिली। तो वो इमोशनल वेलबींग पे काम कर रहे हैं, हम वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं। अगर किसी, अभी मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ नहीं है, बट जब वो थे, तो अगर मेरा बच्चा देख रहा है कि मैं उनकी टेक केयर कर रही हूँ, तो वो वैल्यूज उसमें ट्रांसफर देखकर ही हो रहे हैं। हम अपने घर में हम सारे इकट्ठे जाते हैं ट्रिप्स पे, तो जब हम ट्रिप्स पे जाते हैं, क्या आपको अप एंड डाउन नजर नहीं होंगे, पर उन सबको हम सॉल्व करते हैं। तो उनको आज ये समझ में आ गया कि लड़ाई होनी ओके, सॉल्व करनी
डबल Double हो हो गया। गया। तो कुछ चीजें हम इनकलकेट कर लेते हैं, बट वहीं कहीं बार ग्रैंड पेरेंट्स कुछ गलतियां या एक्सटेंडेड फैमिली गलती कर जाती है, कंपैरिजन, Yes. क्रिटिसिज्म। Hmm. एंड पेरेंट्स ने कोई बात अपने बच्चों के लिए क्रिएट करी, उसको ओवर कर देना, ओवर पावर कर देना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद अपना बच्चों को बिना बात के लिए मतलब टॉन्ट लेबल दे देना, वो जो ये छोटे छोटे से काम है ना, वो गलत है। इंस्पाइट दैट आप इकट्ठे बैठ जाओ, पूरी फैमिली, आपको फैमिली आपकी बड़ी हो गई है तो पूरी फैमिली का जो रूल्स बनाने इकट्ठे बैठ के बना लो ना। सारे बच्चे सारे बड़े बैठ जाओ ऑन द टेबल एंड सेट डाउन। टाइम लगेगा ना, बट वो जो बनेगा सबके लिए हो जाएगा। Yeah. सबके लिए हो जाएगा। एंड बात करो, वीक में 1 डे रखो कि जहां सब अपनी अपनी शेयरिंग करें। डोंट जज द चाइल्ड, हर बच्चा डिफरेंट है तो उसको उस डिफरेंट उससे क्वालिटी से देखो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो बस यही छोटे छोटे से काम है। तो जो हम वैल्यूज बच्चों, क्यों जाएंगे बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में? फैमिली तो स्ट्रेंथ हमने कोविड में देख लिया है। Yes, yes, definitely. स्ट्रेंथ होती है, ब्लेस्ड होते हैं अगर वी हैव फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली। तो मुझे लगता है हमने तो कोविड में बहुत एंजॉय किया था। ऊपर नीचे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, आपस में खाना खिला रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे और डार्क रूम्स हो रहे थे, बहुत कुछ किया हमने, तो एंजॉय किया उसको। तो ऐसे एंजॉय कर सकते हो आप। तो And it is also on the grandparents or extended families part that they have to accept that each child is unique. Yes. Should be no comparison, no labeling. There should be no tags for children. Exactly. और अब तो मैं ये बोलूंगी, टू रेजिंग ए चाइल्ड वी नीड ए विलेज। और वो विलेज कहाँ से आएंगे? यही तो है। मैं एक चीज में अच्छी हूँ, मेरी बड़ी भाभी किसी चीज में अच्छी है, वो किसी और चीज में अच्छी है, मेरी दूसरी भाभी, आई एम द यंगेस्ट वन। Okay. We have 3 elders भाभीज in our house. अरे सब में तो क्वालिटी, Contribution from each one of them. क्वालिटी मेरे बच्चा मेरे से सीखेगा, सिर्फ मेरा बच्चा 3 और माओ से भी सीखेगा। Yes. वो उनकी मदर्स हैं। तो हम 4 मदर एक बच्चे को पाल रही है। आप इमेजिन करो कितने ब्यूटीफुल थिंग है, 4 फादर पाल रहे हैं एक बच्चे को। तो मेरी बेटी जो मेडिकल कर रही है, वो मेरे ब्रदर इन लॉ इज ए डॉक्टर Oh. एंड दे टॉकिंग टू ईच अदर। मेरे हस्बैंड और अब वो तो बिजनेसमैन है, तो वो क्या बात करें, वो मेरे हस्बैंड बाकी बच्चों से बात करते हैं। तो आप समझ रहे हो हम कैसे The cross links एक्चुअली is producing such a हाँ positive output in the family. एक्चुअली ये होता है अगर आप उसको इस तरीके से जाओ तो अब हमें पार्टी करनी है, आ जाओ यार, सारे आ जाओ, कोई वो नहीं है, घर में ही पार्टी है। एवरी फंक्शन इज ए, मतलब एवरी इवेंट इज ए पार्टी। Yeah. Wow, that was such a closing note, such amazing closing note. Thank you so much, Rakhi ma'am, for giving your valuable insights. And you know, I'm sure the listeners must be walking away with so much positivity, so much understanding, and the parents must have also learned how to navigate through the tough emotions of their own and their child. Thank you so much, ma'am. It's a pleasure. एंड इट्स माय रियली में प्लेजर मोमेंट कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बुलाया। हर फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रगल चल रहा है, और अगर ये पेरेंट्स सिंपल इल्यूजन्स में ना जाके बात कर लो, और पेरेंट्स नहीं, मैं बोलूँगी एवरी फैमिली मेम्बर, आपको किसी के बारे में बात करनी है, आपको उसके बारे में जाना है, गो एंड टॉक टू द पर्सन स्ट्रेट अवे। आई वॉन्ट टू नो यू, प्लीज टेल मी योर फीलिंग्स। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, चिल्ला दिया, बोल दिया, 2 मिनट जाकर पास होने दो मोमेंट, गो एंड सिट विद दैट पर्सन एंड आस्क क्या चल रहा है लाइफ में, कहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है, क्या हो रहा है। अरे ये ऐसे बात खत्म होती है। एटलीस्ट आप उसका वर्ल्ड जाने। एंड जब ये चीजें बिल्कुल डेली प्रैक्टिस पे आ जाती है ना, तब फैमिली ऐसे ही हो जाती है। Strengthening of the bond. Thank you so much, ma'am. It was pleasure.